So hello, hi, good morning, namaskar, welcome to my channel, The Muscle Teacher. So आज एनसीईआरटी का एक जो मैंने बोला था एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के लिए. सो 8 क्लास से मैं अभी शुरू करने वाला हूँ. मेरे कुछ बच्चे हैं 8 क्लास में. एक्चुअली दे सेड दैट कि थोड़ा एक चैप्टर उन लोगों को थोड़ा समझना है. सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ जियोग्राफी का एक चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेस. ठीक है, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेस and day by day I'll keep on uploading all those you can say all those chapters of NCERT which are present over there in the class 8. okay, धीरे धीरे करके 8, 9, 10th वो मैं अपलोड करते रहूँगा. ठीक है, and today I'll be starting with class 8 geography human resources. okay, तो स्टार्ट करते हैं तब. okay, so as we know we'll start with the chapter. let me make it white, थोड़ा सा कर लेते हैं. I hope it is visible. okay, human resources. एक्चुअली मेरा वो नोट्स था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ. मैं इसको देखूंगा बाद में फिर से, एंड अगर होगा तो अगले क्लास से मैं यहाँ पर नोट को पूरा रिप्रेजेंट करके बता दूंगा. ठीक है, लेकिन आज के लिए लेट मी जस्ट स्पीक इट अप. ठीक है, एंड आप लोगों का ये वन टाइम रिवीजन हो जाएगा जो भी है. यू कैन रिवाइज फॉर योर एग्जाम्स. ओके, स्पेशली टू द क्लास 8 स्टूडेंट्स. okay, those who are in class 8 they can revise it. it's a CBSE NCERT, you know. so डिस्कस करते हैं. ठीक है, so we know that this human resource is considered as one of the most important resource, or also called as ultimate resource. ये जो human resource है is also called as ultimate resource. okay, is also called as ultimate resource. so उससे पहले before moving to human resource, उससे पहले I just wanted to know like कि resource क्या है, what is that resource. as we know, resource is something, okay, resource is something that satisfies, okay, satisfies human need. okay, something that satisfies human needs is termed as a resource. so यहाँ पर human resource जो है, human resource, what is that human resource. देखो, when we human are are termed or as looked at as a resource, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं और कंपनीज होते हैं उसमें एक वर्ड आता है कि HR है, HR इंटरव्यू है. ठीक है, आपने सुने होंगे HR इंटरव्यू है, HR ने मेरे को गाली दिया है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस. व्हाट इज दैट HR? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स, वेयर वी ह्यूमन विल बी यूजिंग आवर ओन स्किल्स, in order to give the company, give the organization or satisfy someone's need. for an example, सोचते हैं, सपोज मान लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैं एक पेंटर हूं. आई एम अ पेंटर. अगर मैं एक पेंटर हूं, सो माई स्किल इज टू पेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस painting or the knowledge of painting I am able to draw something. okay, and I am satisfying someone's need. so मेरा एक दोस्त मेरे पास आया कि देखो मेरे को एक पोर्ट्रेट बनाना है, प्लीज ड्रॉ इट फॉर मी, and I'll be paying you some money. now see, because I do have the knowledge or I do have the skill of what, I do have the skill of painting, I drew something for my friend. that is how we use our own skill set as a resource for others, for the organization, for any company or for someone else, XYZ. am I clear? this is what we call as a human resource. am I clear to everyone? देखो फिर क्या आता है कि see, there is one word we call it as distribution. we call it as distribution of population. we call it as distribution of
वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सी, ये जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा ऐसा फेल कर रहे हैं ना। देखो, तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सी, द वे इन विच द population is distributed on the surface of the earth. On the surface of the earth, it is only called as what? Distribution of population. On the surface of the earth, how the population is being distributed, उसको क्या बोलते हैं? Population distribution और distribution of the population on the surface of the earth. अर्थ के ऊपर, जैसे हम लोग जैसे फैल कर रह रहे हैं, अलग अलग जो प्रजाति के लोग हैं, तो that is what we call as distribution of population. Second is what? See, we know that the population is actually distributed unevenly. ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं, सॉरी, मानते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं सपोज कि हिमाचल प्रदेश का, और यू कैन से दैट उत्तराखंड का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। ओके, वी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ उत्तराखंड। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, ओके, कहां पर? हाँ, ठीक, देते हैं हम लोग दिल्ली का देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली का। सी, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, द पीपल हु डू लिव इन दीज एरियाज एंड द पीपल हु डू लिव इन दीज एरियाज, ओके, देयर लाइफस्टाइल इज वे डिफरेंट फ्रॉम बोथ। क्यों? कि देखो, ये जो है उत्तराखंड इज अ माउंटेनियस रीजन, इट्स अ माउंटेन रीजन, यस और नो? उत्तराखंड रीजन इज अ माउंटेनियस रीजन, बट द प्लेन्स, दिल्ली वाला रीजन, वो जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर गंगा प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स है यहाँ पर, ठीक है। देखो, इसलिए उत्तराखंड वाला जो एरिया है, क्योंकि वो हाईली माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, एंड दिल्ली वाला रीजन जो प्लेन रीजन है, गंगा प्लेन है वहां पर, ठीक है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का इसलिए है क्योंकि देखो, हम लोग का जो अर्थ का जो टोपोग्राफी है, ठीक है, अर्थ का जो टोपोग्राफी है, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है। कहीं पर बहुत ऊंचे चट्टाने हैं, कहीं पर पूरा प्लेन्स है, कहीं पर पूरा प्लेट्यू है, ठीक है, कहीं पर आइलैंड्स हैं। So this is why people are sparsely populated in some of the regions and people are densely populated in some of the regions. कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, कुछ रीजन्स में कुछ कम लोग रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का टोपोग्राफी अलग अलग है। कहीं पर हिल्स है, हम लोग जानते होंगे, कहीं पर हिल्स, कहीं पर माउंटेन्स, कहीं पर प्लेन्स, कहीं पर प्लेट्यूज, ठीक है, डेजर्ट्स, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। कम लोग कहीं रहते हैं, कहीं पर ज्यादा लोग रहते होंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम लोग का जो रीजन्स है, जो अर्थ का जो टोपोग्राफी है, रीजन्स है, वो डिफरेंट है, इसलिए लोगों को रहने में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर माउंटेन में सब लोग नहीं रह सकते। वो अगर देखो, फॉर एन एग्जांपल सोचो, अगर अभी पूरा हम लोग एक पहाड़ चढ़ेंगे, माउंटेन चढ़ेंगे, ठीक है, उस माउंटेन में इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फॉर एग्रीकल्चर वहां पर करना इज नियरली इम्पॉसिबल, बहुत ही कष्ट होता है वहां पर एग्रीकल्चर करना। मे बी सम व्हाट कुछ एग्रीकल्चर होते होंगे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा। कम टू हियर टू द गंगा प्लेन्स, दिल्ली वाला रीजन्स, उत्तर प्रदेश वाला रीजन्स, ठीक है, दिल्ली वाला रीजन जो हम लोग आते उत्तर प्रदेश का, यूपी का देखेंगे, हम बात करेंगे, तो दिल्ली मस्त पूरा करके वहां पर व्हीट, राइस सब कुछ है। क्यों? वाई? बिकॉज पहले तो ये एक प्लेन है, ठीक है, एंड दूसरा ये जो लैंड है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। क्यों फर्टाइल लैंड है? अरे बाबा, पूरा उत्तर प्रदेश से होते होते हम लोग का गंगा जा रहा है कि नहीं? गंगा इज अ रिवर ना, रिवर ब्रिंग्स विद देम सेडिमेंट्स, इसलिए वो जो एरिया है वो सेडिमेंट से पूरा ज्यादा ही है, यहाँ पर फर्टाइल है लैंड। इसलिए वी नो दैट इन दोज एरियाज ऑफ यूपी, ओके, वी हैव व्हाट? alluvial soil,
जो फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर माउंटेनस रीजन में माउंटेनस सॉइल है ना, जो कि नॉट दैट फर्टाइल, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना आसान नहीं है वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है। एंड दिस इज वाई द पीपल, ज़्यादा एग्रीकल्चर, पानी भी यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है तो लोग यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर पानी मिलना भी कष्ट है, एग्रीकल्चर भी लोग यहाँ पर रहेंगे ही क्यों, दैट इज वाई दे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स, ओके। then what we have, okay, see one of the example also I just forgot to say you, okay, if we consider, okay देखो, if we consider क्या उसको बोलते हैं, इक्वेटर, ओके, इफ यू कंसिडर इक्वेटर, देखो अगर इक्वेटर का बात करेंगे 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, तुम देखना ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे 8-10 डिग्री अगर ऊपर जाएंगे, सो ये वाला रीजन डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड, थोड़ा ये रीजन आएगी, ये भी पॉपुलेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का लैंड फॉर्म यहीं पर है, ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा ही हम लोग का लैंड फॉर्म्स है, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी कुछ पॉपुलेशन है, लेकिन यू विल मार्क इट, हम लोग मार्क करेंगे, पीपल यूजुअली डू नॉट गो टू द प्लेसेस विच आर जो एक्सट्रीम जोन्स होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मानते हैं क्या बोलते हैं उसको, पोलर रीजन से वो दूर रहेंगे, ठीक है। एंड वी कैन से दैट डेजर्ट से भी वो दूर रहेंगे, यू विल सी, ठीक है। पोलर रीजन्स हुआ, डेजर्ट्स हुआ, दे विल स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लेसेस, यहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन वेरी स्पेर्सली पॉपुलेटेड, पूरा थोड़े कुछ लोग हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वही सही नहीं है वहां पर रहने के लिए, ठीक है। तो लोग रहेंगे ही कैसे, हम लोग वो सह भी नहीं पाएंगे, लोग वहां पर जो पहले से ही रह रहे हैं तो उनका वो आदत है, दैट इज वाई वेरी लेस पॉपुलेशन ओवर देयर। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कहां पर ज्यादा पॉपुलेशन, हम लोग का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम लोग का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड और एक बात भी है, अगर हम लोग देखेंगे तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, यू विल सी दिस एशिया एंड हम लोग का अफ्रीका जो है, ये दोनों जो देश है, जो कंटिनेंट है, ठीक है, यू विल सी एशिया कंटिनेंट एंड अफ्रीकन कंटिनेंट, यू विल सी सबसे ज्यादा लोग यहीं पर ही हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इन दोनों कंटिनेंट में ही है, ठीक है, बाकी है। एंड जो दुनिया के लाइक टॉप 10 कंट्रीज जो है, उन टॉप 10 कंट्रीज में ही दुनिया के 60% पॉपुलेशन है, एंड बाकी के 190 अदर्स वहां पर, और बाकी के 40% है। टॉप 10 में 60% का पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे किसका ना, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग का हुआ कुछ नॉर्थ अमेरिकन वाला रीजन हुआ, हम लोग का एशिया, यूरोप, ठीक है। हम लोग अगर वो देखेंगे, ये तो अभी मैं पूरा तो उसका भूल गया हूँ, ठीक है, ऐसे करके है हम लोग का पूरा, ठीक है, ऐसे हम लोग का वर्ल्ड मैप जो है, ठीक है। तो ये वाला रीजन्स पूरा हुआ, नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन्स पूरा हुआ, ठीक है। हम लोग का जो एशियन वाला कंट्री, हम लोग यूरोप ये वाला एशिया, ठीक है, ये अफ्रीकन, ये यहाँ पर अफ्रीकन है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन एरियाज में है, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग का एक वर्ड निकल कर आता है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्या आता है एक वर्ड? डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब क्या, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब यह है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं,
ठीक है, कितने लोग रहते हैं, वो है उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, मतलब समझ में आया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहते हैं, वो है क्या, वो है उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एन एग्जांपल देते हैं, सपोज मान लेते हैं कि एक एरिया है, सपोज एक मान लेते हैं, हम लोग अपना ही शहर का एग्जांपल दें, वो ये सही नहीं है, बस फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि हम लोग के एरिया में सपोज कि 10,000 लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं, सॉरी 10,000 लोग हैं, ठीक है, एंड 10,000 लोग हैं, तो अगर हम लोग का पूरा जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 10,000 के आसपास हम लोग का पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो है इस एरिया की क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं किसका, एक हम लोग इंडिया का ही है, जैसे कि हम लोग मानते हैं इसका दिल्ली का, ठीक है। अगर हम दिल्ली को देखें, दिल्ली में हम लोग का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज नियरली 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में उन लोग का एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, दिल्ली में। अगर हम लोग इसका एग्जांपल दें कि उसका नाम क्या, मकाओ जो है एक जगह है, वहां पर आई गेस 32,000 है उनका पॉपुलेशन डेंसिटी, 32,000, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में। समझ पा रहे हो, पर स्क्वायर किलोमीटर में 32,000 लोग। अच्छा, तो इंडिया का कितना होगा, इंडिया का, डू एनीवन हैव एनी नॉलेज? देखो ये जो है ना, ये एवरेज की औसत वो निकलता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग का अलग अलग करके वो निकलता रहता है कि यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इस एरिया में कम है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जाओगे शिमला वाला रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में, वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन यू गो टू दिस हम लोग का जो उत्तर प्रदेश एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर लोग रह पाएंगे। लेकिन उन एरिया में जो टेरान वाले रीजन है, हम लोग को जो मेघालय हुआ, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश हो, वो टेरान वाले रीजन, वहाँ पर लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो जो एरिया है वो स्पेसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में हम लोग का जो है, जो ऑन एन एवरेज निकल रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, इट इज नियरली, सॉरी चल क्यों नहीं रहा है, इट इज नियरली 382, ठीक है। इंडिया में जो एवरेज है पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज 382 पीपल और 82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 के आसपास लोग रहते हैं। आम आई क्लियर? ठीक है, समझ में आया सबको? फिर देखो, अगर यूएसए का बात करेंगे, यहीं पर अगर हम लोग यूएसए का बात करेंगे, आई थिंक इट इज 53 इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ यूएसए। अगर वो देखेंगे ऑन एन एवरेज में, तो वो 53 के आसपास, 53 की 54, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट 1 मिनट। ओके सॉरी, ये है 51, ठीक है, 51 है, वो यूएसए का नहीं है, सॉरी यूएसए का नहीं है, ये ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का जो है, ये ऑन एन एवरेज क्या है, पूरा वर्ल्ड का एवरेज जो है, कि अगर हम पूरा वर्ल्ड का देखेंगे तो 51% ऑन एन एवरेज उनका दिखा रहा है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर इतना लोग रहते हैं। क्यों इतना कम? लेकिन अलग अलग जगह में तो बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, नहीं, इसलिए कि कोई जगह है वो बहुत ज़्यादा ही हाईली है, कोई जगह में बहुत ज़्यादा लो है। समझ में आएगा सबको? आम आई क्लियर? ठीक है, और क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि देयर आर सम फैक्टर्स, ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स, जो लोग जो डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर उधर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्यों हुए? कुछ तो फैक्टर, कुछ ना कुछ तो होगा ही, गारंटी कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉपुलेशन इन अनइवन वे? विल नो दैट फैक्टर्स नाउ, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द distribution of factors affecting the distribution of population.
ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग का पॉपुलेशन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। पहला जो दो मेन फैक्टर्स है, उसके अंदर सब फैक्टर्स है। पहला फैक्टर क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स। दूसरा क्या है? सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि पहला जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है, फिर सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है जियोग्राफिकल फैक्टर्स में? हम लोग पहला देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या है कि टोपोग्राफी। क्या देखेंगे हम लोग? टोपोग्राफी। हम लोग देखेंगे टोपोग्राफी। देखो, ओके, टोपोग्राफी में, ठीक है, देखो क्या है। जैसे कि मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम लोग को बताया है कि अगर हम लोग टोपोग्राफी के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग के जो कंट्री में वी हैव डिफरेंट टेरेन्स, माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग भी उस जगह में अलग अलग तरीके से रह रहे होंगे ऑब्वियसली। इसलिए वो बोल रहा है कि पीपल टेंड्स टू लीव in plain areas rather than in mountain areas। ठीक है, rather than in mountain areas। और उसके बाद भी क्लाइमेट का भी बोलूंगा, ये पहले सुन लो, जान लो। टोपोग्राफी देखो, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे बोला मैंने कि हम लोग एरिया, सोचो हम लोग जा रहे हैं, उत्तराखंड गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वो जगह पहाड़ है, एक तो पहाड़ है, दूसरा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी ऑब्वियसली। जो हम लोग के जो ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका तो वो आदत नहीं होगा उन एरिया में जाकर रहने के लिए। वो तो टुंड्रा रीजन्स में हो गया, पूरा ऊपर वाला क्लाइमेट में, वेरी कोल्ड क्लाइमेट में, वो जहाँ सपोज हिमालय वाला रीजन्स है तो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, तो लोग वहाँ तो रह नहीं पाएंगे। जितने भी रह रहे उनका आदत है और बहुत कम है, इसलिए लोग वहाँ पर, इसलिए लोग वहाँ पर रह भी नहीं। क्योंकि देखो, हम जो इंसान है, द ह्यूमन, ठीक है, ये जो इंसान है सॉरी, ये जो इंसान है, वी नीड टू हैव गुड एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम लोग एक अच्छे तरीके का एनवायरमेंट चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग को थोड़ा पानी वानी चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, हम लोग को अच्छा सॉइल भी चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग अच्छा सॉइल होगा तो एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। हम लोग को अच्छा सॉइल, वाटर चाहिए, अच्छा सॉइल चाहिए, ठीक है। हम लोग को प्लेन रीजन्स चाहिए खेती वेती के लिए, घर के लिए, ठीक है, अपने एनिमल ग्रेजिंग्स के लिए हम लोग को ये सब चीज़ चाहिए। अब सोचो, अगर मैं क्या हुआ, मैं अभी एक माउंटेन रीजन्स में हूँ, ये एक माउंटेन रीजन है एंड दूसरी जगह प्लेन रीजन, ये एक प्लेन रीजन है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश का रीजन, ये मान लेते हैं हम लोग किसको मानेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश को ही मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश को मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश रीजन है। अब देखो, क्योंकि ये माउंटेनस रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव सॉरी एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, तो ये जो माउंटेनस रीजन है, इस एरियाज में हमको तो पानी मिलना, वाटर इज वेरी हार्ड। यहाँ का सॉइल जो होगा वो माउंटेनियस सॉइल होगा, तो अगर माउंटेनियस सॉइल है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत कष्ट है, एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, ये सुनो, ठीक। तो लोग जो रहेंगे उनको एक अच्छा वाला कंडीशन तो चाहिए ना लोग रहने के लिए, तो उनको मिल नहीं रहा है, तो रहेंगे क्या, इसलिए नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग अभी इसी तरीके से यूपी को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे, तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर पहले तो ये प्लेन रीजन है, यहाँ पर गंगा भी फ्लो करते करते जा रहा है, और गंगा अगर फ्लो तो उसके साथ साथ वो अपना सेडिमेंट्स भी यहाँ पर भरते जा रहा है, सेडिमेंट्स। तो इसलिए इस एरिया का जो सॉइल है ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी है सॉइल। अगर फर्टाइल है तो लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी हुआ, यहाँ पर पानी भी है, लोग यहाँ पर पानी भी मिल रहा है, क्योंकि इरिगेशन भी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी मिल जा रहा है। लोग जो हम लोग के जो डोमेस्टिक है उनको ग्रेजिंग के लिए उनको भी पानी मिल जा रहा है, ठीक है। एंड जो कंडीशन है, ये भी सब्ट्रॉपिकल कंडीशन, हम लोग का जो कंट्री है, इतना भी ठंड नहीं है, इतना भी गर्मी नहीं है, तो ये वाला अच्छा कंडीशन में तो लोग वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए टोपोग्राफी इज वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि हम लोग का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात क्लियर आया,
क्लियर होगा सबसे बात? ठीक है, ठीक है, ओके। यह टॉपोग्राफी, सॉरी। नंबर 2 में क्या आएगा हम लोग का? अगर टॉपोग्राफी एक आया, नंबर 2 में हम लोग का क्या आएगा? फिर से हम लोग का आएगा क्लाइमेट। ठीक है, फिर से हम लोग का क्या आएगा? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, अभी जस्ट बताया कि अगर जब बात क्लाइमेट की आती है, जब बात क्लाइमेट की आती है, पीपल ना, लोग क्या ना, लोगों को अच्छा क्लाइमेट मतलब थोड़ा जो मॉडरेट टाइप का होता है ना, वो अच्छा लगता है। पीपल यू नो जनरली अवॉइड, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, लोग जनरली क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। क्या अवॉइड करते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्या अवॉइड करते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स मतलब क्या? अगर ऊपर जाएंगे तो पोलर रीजन्स, पूरा नीचे वाला पोलर रीजन्स। ठीक है, हम लोग का डेजर्ट वाला रीजन्स, ये रीजन्स को लोग क्या करेंगे? पूरा अवॉइड करेंगे। लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्यों? देखो, ज्यादा ठंड में लोग नहीं रह पाएंगे, ज्यादा गर्मी में भी लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन एरियाज में यू विल सी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर देयर। ठीक है, ये क्या हुआ हम लोग का जो क्लाइमेट वाला एक टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद कौन सा फैक्टर आता है? फिर तीसरे में आता है क्या? हम लोग बोलते हैं उसको वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। ये भी एक फैक्टर है ऑब्वियसली। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज द मेजर यू कैन से द मेजर फैक्टर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? सोचो, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। याद करो इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद करो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात याद करना, वहां पर सोचो। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हम लोग का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन तुम लोग बोलते होगे। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये जो सिविलाइजेशन है जनरली ये क्या था? इंडस रिवर के किनारे ही था। इंडस रिवर के किनारे ही, बैंक ऑफ द रिवर इंडस ही था ये, इन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। क्यों? देखना तुम लोग थोड़ा पीछे अगर जाओगे, तुम लोग टाइमलाइन में अगर पीछे जाओ तो देखना तुम लोग कि जितने भी हम लोग का जो डिस्कवरी हुए हैं, जो पहले के जो सिविलाइजेशन जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, लाइक लॉट ऑफ देम और मैक्सिमम नंबर ऑफ देम आर नियर सम ऑफ द रिवर्स, नियर सम ऑफ द रिवर्स ओनली। देखिए, जो भी है बहुत ज्यादा रिवर्स के पास ही है। क्यों पास में? रिवर के पास ही है। देखो, इसलिए रिवर्स के पास है क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि रिवर्स के पास अगर रहेंगे तो उनका वाटर सप्लाई का जो काम है ये भी सही हो जाएगा। उस पानी को पीने के लिए कुछ वाइल्ड एनिमल्स आएंगे तो उनको वो हंट भी कर सकते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हंट करके वो भी खा सकते हैं वो लोग। उनका वाटर प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। उनको एग्रीकल्चर के लिए उनको वाटर इरिगेशन चाहिए तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिविलाइजेशंस बैक देन वर नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। सम ऑफ द रिवर, जो भी रिवर उनके आसपास ही देखना सब मिलेंगे। नाइल वाला देखना रिवर, जो वैंग जो हम लोग के चाइना के जो वो भी उनके पास भी वो रिवर वहां पर भी है। ठीक है, नाइल रिवर वो उस एरियाज के पास में देखना वो भी डेंसली पॉपुलेटेड होगा, वो एरियाज भी। क्यों? क्योंकि वो वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। लोगों को पानी चाहिए ही चाहिए, तो उस एरिया में वो लोग रहेंगे। पीपल विल बी लिविंग ओवर दोज प्लेसेस ओनली बिकॉज दे डू नीड वाटर टू सर्वाइव। They do need water to go for agriculture, go for irrigation, so that their animals can drink water. अगर दूसरे एनिमल्स पानी पे निकल आएंगे तो उनको हर्ट भी कर सकते हैं। सब तरीके का हेल्प इसलिए वाटर करता है। इसलिए वाटर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज और द पॉपुलेशन ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये भी एक है। फिर क्या आता है कि हम लोग का, हाँ, अब क्या आएगा? अगर फॉर उसके बाद क्या आता है हम लोग का? उसके बाद आता है हम लोग का सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले देखते हैं किसको ना, सोशल सोशल फैक्टर्स क्या है देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? सोशल फैक्टर्स क्या है देखेंगे। ठीक है, सोशल फैक्टर्स देखते हैं। तो बात करते हैं सोशल फैक्टर्स के बारे में। मान लेते हैं कि अब मान लो
हम लोग अभी सपोज तुम लोग अभी यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर कहीं पर तुम लोग जॉब कर रहे हो, सो ऑल ऑफ अ सडन तुम लोग का ट्रांसफर एक जगह में हो जाता है, तुम लोग का ट्रांसफर एक जगह में हो जाता है, वो पूरा सा पूरा क्या है, रूरल एरिया है। क्या है, रूरल एरिया है, ठीक है, एक क्या है, पूरा रूरल एरिया है। अब देखो, व्हेन यू विल विजिट दैट प्लेस, जब तुम्हारा ट्रांसफर हुआ, तुम लोग गए जाओगे वहां पर, ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में वो वैसा दिमाग में आएगा ही आएगा कि वहां पर समाज कैसा होगा, कैसे लोग होंगे वहां पर, हम लोग के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे कि नहीं। पीपल टेंड्स टू थिंक दिस थिंग्स कि हाउ, व्हाट अबाउट द सोसाइटी कैसा होगा वहां पर, हाउ अबाउट द पीपल, लोग कैसे होंगे वहां पर। ओके, पीपल विल टॉक अबाउट दिस थिंग, पीपल ट्राई टू टॉक, पीपल विल टॉक, ठीक है। इसीलिए तुम देखोगे उस एरिया में, सपोज अगर मान लो आप लोगों का कोई बच्चा भी है, अब इफ डू हैव अ चाइल्ड ऑल्सो, तो अभी मान लो, सोचो आप लोग उसके एजुकेशन के बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे, ऑब्वियसली सोचोगे, ऑब्वियसली। अब सोचो तुम्हारा ट्रांसफर, अगर तुम बोलोगे मेरा एजुकेशन चाहिए, तुम लोग को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी चाहिए होगा, ऑब्वियसली। ओके, थोड़ा हैंग हो गया, रुको, ठीक है। जैसे मैं बात करता तब भी, जैसे कि हम लोग का हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगा, तुम लोग को एजुकेशन चाहिए होगा, तुम लोग को एक अच्छा सा एक सोसाइटी चाहिए होगा रहने के लिए। सो वी द पीपल हु डू बिलोंग टू द सिविलाइज सोसाइटी, ठीक है, उन लोगों को एक अच्छा सोसाइटी चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे मान लेते हैं एक डॉक्टर, मान लेते हैं वी नो डॉक्टर्स आर द वन ऑफ द वेरी सिविलाइज पर्सन ओवर दैट इन आवर सोसाइटी। वो जाकर कोई क्रिमिनल के साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि वो सराउंडिंग उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। नो, दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कहीं जाते हैं, हम लोग नहीं बोलते अगर कोई काम पे जाते हैं, अरे वहां पर वर्क एनवायरमेंट कैसा होगा, वहां पर लोग कैसे होंगे, क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को सराउंडिंग मैटर करेगा, करता है मैटर, ठीक है, वो बात है। और क्या है, जैसे कि हम लोग का वो हुआ, और क्या बोलते हैं हम लोग का जैसे कि क्या बोलते हैं, हाउसिंग वहां पर अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है, घर वर कैसे होंगे वहां पर, हम लोग का हेल्थ केयर, ठीक है, जैसे मैंने बोला हेल्थ केयर वहां पर वो सब कैसे है, ये सब फैक्टर्स तुम लोग पहले देखते हो कहीं पर भी जाने से पहले, ठीक है, कहीं पर भी जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, कल्चरल फैक्टर्स, ये सबको मालूम ही होगा आई गेस। कल्चरल फैक्टर्स, देखो कल्चरल फैक्टर्स क्या, देखो एग्जाम्पल देते हैं हम बनारस का और वाराणसी, ठीक है, वाराणसी का एग्जाम्पल देते हैं, बनारस का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। वो जो एरियाज है, ठीक है, यू विल सी बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, बहुत पॉपुलेशन ज्यादा होता है। क्यों पॉपुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जगह है ये रिलीजन वाइज बहुत ज्यादा पायस है, मतलब प्योर है। तो जितने भी श्रद्धालु होंगे, तो जितने भी डिवोटीज होंगे, ठीक है, वो लोग तो जाएंगे ना, वो लोग भी तो जाएंगे, वहां पर लोग पहले से हैं, डिवोटीज विल आल्सो विजिट दोस प्लेसेस एंड सी बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये जो एरियाज है इनका ना बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा। क्यों, देखो जो रिलीजन जो है ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं इन आवर लाइफ, इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। जो रिलीजन है, ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड क्योंकि इन जगहों का कुछ कल्चरली ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा ही है लोगों का, ठीक है, इन लोग इस एरियाज का कल्चरल सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा ही है, इसलिए यहाँ लोग वहां पर जाएंगे ही जाएंगे और वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, ये हुआ। नाउ और एक एग्जांपल आता है हम लोग का, क्या जो लास्ट फैक्टर जो है क्या है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, देखो सुनो, अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम पहले का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे जो लोग तो है यहाँ पर वो लोग तो समझ गए होंगे, जाजपुर रोड का एग्जांपल मैं देने वाला हूँ अभी। प्रीवियसली जाजपुर में यहाँ पर टाटा प्लांट नहीं था, ठीक है, टाटा का प्लांट नहीं था प्रीवियसली, इट वाज नॉट देयर, ठीक है, टाटा प्लांट नहीं था प्रीवियसली। अब क्या हुआ, जब ये नया टाटा प्लांट बन गया, सो पीपल केम, ठीक है, पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू जाजपुर रोड, ठीक है, लोग आने लगे जाजपुर रोड को। क्यों,
बिकॉज जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है किसी एरियाज का, वो साथ ही साथ अपना डेवलपमेंट भी लेते जाता है ऊपर तक, ठीक है। क्यों देखो, अब इस एरिया में क्या हुआ, टाटा का प्लांट आ गया। क्योंकि टाटा का प्लांट आ गया, इस एरिया थोड़ा डेवलप करने लगा, यहाँ पर नए स्कूल्स खुलने लगे, नए नए बिल्डिंग्स बनने लगे, अपार्टमेंट्स बनने लगे। क्योंकि उस वो जो एरिया जो लोग आएंगे, यहाँ पर तो पॉपुलेशन पहले नहीं था ना, पॉपुलेशन कम होगा, तो बाहर से जो लोग यहाँ पर रहेंगे तो उन लोग के रहने के लिए यहाँ पर अपार्टमेंट्स नए बनने लगे। यहाँ पर जो देखे तो रेंट जो है रेंट भी हाइक होने लगा। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स, वो एरिया का डेवलप करते करते ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इट ब्रिंग्स व्हाट, इट ब्रिंग्स माइग्रेशन विद देम, इट ब्रिंग्स व्हाट, इट ब्रिंग्स माइग्रेशन विद देम, ठीक है। लोग आएंगे, लोग कुछ जाएंगे, बाहर भी जाते हैं, लोग आते भी हैं, लोग बाहर भी जाते हैं। Am I clear? जिस एरियाज में किस लिए, बिकॉज वी नीड सम गुड अपॉर्चुनिटीज, हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटीज चाहिए होता है, हम लोग को कुछ नया डेवलपमेंट करना होता है, हम लोग को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जाते हैं। इन सब चीजों के लिए ये सब चीज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर, जो पैसा का जो फैक्टर है, इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, पीपल टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग जाते हैं ना, जो देख रहे तुम लोग सुने होंगे अपने गाँव में कि वो सूरत गया है काम करने के लिए, सूरत, ठीक है। यहाँ पर नहीं, बाहर गया है काम करने के, लोग कुछ बोलते हैं वो बिलैत गया है काम करने, बिलैत मतलब बाहर कंट्रीज, फॉरेन, ठीक है, गया वहां पर काम करने के लिए। जो गांव में जो होते हैं वो ऐसा ही बोलते रहते हैं। क्यों? बिकॉज पीपल डू माइग्रेट इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। Am I clear? क्लियर? ओके। फिर क्या आएगा, ठीक है, हम लोग एक टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चेंज। हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चेंज, ओके। अब देखो, ये जो पॉपुलेशन चेंज जो है, ये जो पॉपुलेशन चेंज जो है, ये किस लिए पॉपुलेशन चेंज होगा? एनी फैक्टर्स जिसके लिए वो पॉपुलेशन चेंज हो सकता है? यस, देखो, हम लोग का पॉपुलेशन जो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज जिससे होता है, वो एक है बर्थ रेट, एक है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, दूसरा है डेथ रेट। एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट। ये दोनों चीजों के वजह से हम लोग का नेचुरल पॉपुलेशन चेंज होता है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट कम है, तो वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। क्या पर ज्यादा डेथ हो गया लेकिन बर्थ रेट कम है, तो वहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया। तो नेचुरल इंडिकेटर हुआ कि नहीं हम लोग का, जो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज का? यस, दीज आर द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन ए सर्टेन एरिया, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके। फिर क्या है, देखो, अगर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, कितने जन्म ले पर 1000 पर्सन में कितने, लाइक हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, ओके, नंबर ऑफ बर्थ रेट पर 1000 पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन, ठीक है। इसमें वही सेम नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, ये वही है, नंबर ऑफ बर्थ फॉर 1000 पर्सन, नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पर्सन, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। फिर क्या आता है हम लोगों का, जैसे कि एक वर्ड है, तुम लोग सुने ही होंगे, जैसे मैं जस्ट अभी बताया, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन मतलब क्या? व्हेन people move from one place to another in search of good work or in search of a good place to live, और कुछ भी फॉर XYZ रीजंस, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं कुछ काम के लिए, कुछ रहने के लिए, स्किल्स के लिए, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलेंगे। दे पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है। इस माइग्रेशन से दो चीज हम लोग को भी सुनने को मिलता है, दो वर्ड, ठीक है। पीपल बहुत ज्यादा जो उसकी हम लोग का कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, ठीक है, इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, ठीक है। एक आता है क्या? इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। देखो, जो इमिग्रेंट्स है, EM जो है, जो इमिग्रेंट्स है, EM जो है, ठीक है, वो क्या है? मान लेते हैं सपोज मैं जो हूं, मैं क्या किया, आई वेंट कहाँ? USA, ठीक है, मैं USA चला गया, ठीक है। तो मैं क्या हुआ? इमिग्रेंट हुआ, ठीक है। मैं क्या हुआ? इमिग्रेंट हुआ। मैं अपने इंडिया से, मैं अपने
इंडिया से चला गया यूएसए, ठीक है, मैं अपने इंडिया से चला गया कहाँ, यूएसए। सो व्हाट वर वी आर द इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स क्या है, मान लो कोई आ गया, कहां पर, इंडिया में कोई आ गया है, ठीक, बाहर से कोई इंडिया, सपोज यूएसए से कोई आया है इंडिया में, तो क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट, ठीक है। हम अपना देश छोड़कर जब जाएंगे तो हम उस देश के लिए क्या होंगे, इमिग्रेंट्स होंगे, और उस देश में जब हम लोग जब अपने देश उनके देश अगर कुछ आ रहे हैं तो क्या होंगे, इमिग्रेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर यू गेटिंग मी और नॉट, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे कि देखो, सपोज इमिग्रेंट्स क्या है, इमिग्रेंट्स क्या है, दोज हु लीव ए कंट्री, जो मैंने बोला जैसे कि मैं इंडिया छोड़कर गया यूएसए को, तो मैं इमिग्रेंट हुआ, ठीक है। इमिग्रेंट कौन है, दोज हु अराइव ए कंट्री, दोज हु अराइव अ कंट्री। समझ में आया कि नहीं, तो मैं अपने देश के लिए इमिग्रेंट हुआ और उनके देश के लिए इमिग्रेंट हुआ, am I clear? समझ में आया कि नहीं, मैं अपने देश के लिए क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, ईएम हो गया, मैं छोड़कर गया ना, तो मैं ईएम हो गया। उनके देश के लिए मैं क्या हुआ, इमिग्रेंट हुआ। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उनके देश के लिए मैं इमिग्रेंट हुआ, मैं अपने देश के लिए इमिग्रेंट हुआ। समझ में आया कि नहीं एवरीवन, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो एक बात उस टाइम में बोलना भूल गया था शुरू में, ठीक है, एक चीज एक डिस्कशन करना भी था, ठीक है, कि एक वर्ड हम लोग का आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुनो, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्या ये हर कंट्रीज में, हम ह्यूमन रिसोर्स किससे आता है, लोगों से आता है, मतलब पॉपुलेशन से आता है, ठीक है, पॉपुलेशन, लोग अपने आप को रिसोर्स बोलते हैं ना, तो ऐसा है क्या, लाइक एवरी पीपल आर अ रिसोर्स, नो, नॉट एवरी पीपल आर रिसोर्स, नहीं, नो, सी वी कैन से दैट एवरी ह्यूमन रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, बट नॉट एवरी पॉपुलेशन और एवरी पर्सन इन दैट पॉपुलेशन इज अ ह्यूमन रिसोर्स, नो। समझ में आया कि नहीं, क्यों, कि ऑब्वियसली ये हम लोग के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को रिसोर्स साबित कर पाए कि हम लोग का कुछ एबिलिटीज है, कि स्किल सेट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग लोअर स्किल्ड है, ठीक है, लोअर स्किल्ड है एंड वील से वी आर एचआर, नो, ये नहीं हो सकता। हम लोगों का काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं आ पा रहे, किसका हेल्प ही नहीं कर, हम लोग अपने आप को रिसोर्स की तरह साबित भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे, नहीं, एवरी ह्यूमन रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बट एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स। ये बात हमेशा याद रखना, am I clear? ठीक है, आपको पता होगा कि देखो ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय द टाइम ऑफ 1985, बाय द टाइम ऑफ 1985 हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट जो था, ठीक है, हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट था, उन्होंने एक नया मिनिस्ट्री भी खोल दिया, एक नया मिनिस्ट्री खोला इसके नाम पर, क्या, HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री उसने खोल दिया था, बिकॉज दे नीडेड न्यू पीपल टू बी स्किलफुल, दे नीडेड द पर्सन, द एडल्ट्स, द ह्यूमन हु आर प्रेजेंट ओवर देयर इन द कंट्री टू बी स्किलफुल, टू बी हु हैव द एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी भी होना चाहिए कि हाँ वो अच्छा कुछ आगे जाकर करें, ठीक है, इसलिए उनके लिए वो एक HRD मिनिस्ट्री भी खोला गया कि हाँ इसके अंदर जो भी हम लोग देख रेख करेंगे, कैसा हम लोग का लोगों का अच्छे स्किल्स डेवलप हो, ये हो, ठीक है, वो लोग सब देख रेख करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक आया, ठीक है। देन एक बात थोड़ा सा हम देखते हैं और क्या है हम लोग का, जस्ट वेट ए मिनट, क्या होता है पीपल करली, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का है वो है हम लोग का शायद पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड, जहाँ पर कुछ आई गेस
कुछ पिरामिड दिया गया है, हम लोग एक पिरामिड केनिया के दिया गया है एंड कुछ जापान और इंडिया का कुछ ऐसा दिया गया है, जापान और इंडिया का, ठीक है। तो तीनों अलग अलग चीज़ों का दिया गया है। सो आई विल बी डिस्कसिंग इट सम अदर डे, ठीक है। जितना मेन का जितना भी था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर होगा तो पिरामिड को मैं एक शॉर्ट बनाकर उसको दिखा दूंगा, ठीक है। हम लोग का जो पॉपुलेशन पिरामिड जो भी है वो मैं डिस्कस करवा दूंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। जो मेन चैप्टर जितना था वो मैंने चैप्टर जितना भी हुआ डिस्कस कर दिया है कि ये तुम लोग इसको पूरा एक वन शॉट वीडियो मान सकते हो, ठीक है। एक वन शॉट वीडियो मान सकते हो। दिस इज फॉर ओनली फॉर योर रिविजन, इट इज ओनली फॉर योर रिविजन, ठीक है। जितना तुम आई गेस फॉर योर रिविजन इट इज मोर देन एनफ। बस सुन लो इसको एक बार, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, चीज़ें अपने कानों में रिपीट हो जाएगा तो अपने आप से याद धीरे धीरे रहने लगता है। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा एक बार बस सुन लो इसको। सुनने से आपको पूरा उसका स्टोरी पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस चैप्टर में ऐसी चीज़ें हैं। सो इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो अगर आप लोगों को चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर कुछ चाहिए जो चैप्टर में है तो आई कैन मेक ए न्यू वीडियो ऑन इट, तो प्लीज़ डू से अबाउट इट। एंड बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है। नमस्कार।